हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस बाय द जो वीमर्स रिपब्लिक्स। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। द प्रॉब्लम फेस बाय द वीमर्स रिपब्लिक्स वेयर अ फ्लॉग द फर्स्ट ईयर. The Weimar is a constitution had a inherent to the drawback making to the Weimars is a republic fragile. There is a most important here, and one was a proportional representation which made it difficult for any party to get a majority leading to the coalition government. There is a most important point here, and the next here. The Article 48, which gives to the President the power to rule by as a declare as a suspended civil right and to the impose on emergency. There is a most important for here Article 48, which give to the President to the power to rule by the declaring to the suspend civil right and to the impose on an emergency. And the next year, people lost the confidence in the democratic parliamentary system. There is a most important here, and also important. The Weimar Republic was not received bail by the people because of the term it was forced to the accept as a realized at the end of the First World War. It was the harsh and humiliating treat that Germany had to be accepted with the Allies. Many people held to the Weimar Republic responsible for the defeat in the war and the accepting the term of the threat of the Versailles. There is a most important point here. And the next year, in 1923, Germany refused to pay a preparation of payments, and the French occupy its leading industry area. The rule is there is a claim, there is a call. Germany offer passive resistance and printed paper currency. There is a most important here, and with the too much of paper currency in a circulation, and the value of German mark feel there is a situation is called hyperinflation. The Weimar Republic had to face another economical crisis here. The USA withdrew here support, then World Stress Exchange crash is a 1929. There is a 1929 is economical crisis in Germany. There is a most important factor, and here arrive of the Hitler. Adolf Hitler is the full name. German is economical was hit by their economical crisis. The workers lost their job or were paid or reduced wages. There is a most important fact here. The number of unemployed and reached to 6 million. 6 million is a maximum. The economical crisis create a feeling of fear among the people. There is a most important here, and come to the Hindi here. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका हिंदी में भी अनुवादित करूंगा, और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कई फॉर्म में आपके समक्ष जो होगा रिलीज होगा, तो इसको हर तरफ से जो है आप सहारिए और इसको आगे जो है बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है अगर हिटलर के रिगार्डिंग हम देखें तो वाइमर जो है गणराज्य की समस्याओं का वर्णन। देखिए, जो वाइमर था वो गणराज्य की समस्या सबसे बड़ी क्या थी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है। अगर हिटलर के पूरा जीवन की हिस्ट्री देखना है तो इसके लिए वीडियो जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर पे उपलब्ध है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो ये आपको जो है इसका मेन होम पेज पे प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर हमने सारे राइजिंग ऑफ हिटलर की पूरी स्टोरी दिया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, जब मैं बीए वाले को करा रहा था हिटलर की सिलेबस, उसमें हिटलर के हर एक जो है बातों के जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ। अगर हिटलर के सारी विषय में अगर देखना चाहते हैं तो इसका जो है 45 मिनट का वीडियो जो है, जो कि बीए वालों के बच्चों के लिए बनाया गया था, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।
तो वहाँ से भी आप काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बात अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वायुमंडल गणराज्य की समस्या का वर्णन कीजिए। देखिए आपने इंग्लिश में अभी समझने की कोशिश किया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए वायुमंडल गणराज्य की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो बीमर जो है कहते गणराज्य द्वारा सम्मान की जाने वाली समस्याएं कुछ इस प्रकार थी जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अगर हम बीमर संविधान में जो है अंतर्निहित कमियां थी जो बीमर गणराज्य को नाजुक बना रही थी। आपको पता है कि जब यहाँ पर हिटलर का उदय हुआ तो उस समय जो है काफ़ी नाजुक स्थितियां थी, जो कि बहुत ही नाजुक कह सकते हो। एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व था जिसमें किसी भी दल के लिए संगठन सरकारों के लिए बहुमत प्राप्त करना कठिन बना दिया था। यानी किसी भी सरकार को जो है पूरी तरह से बहुमत नहीं मिल रहा था। कारण क्या था, वहाँ की समस्याएं। और समस्याएं क्या थी, समस्या जो हर देश की होती है, बेरोजगारी, गरीबी, इकोनॉमिकल क्राइस, और सबसे बड़ा जर्मनी की जो प्रॉब्लम थी वो इकोनॉमिकल क्राइस थी, यानी अर्थव्यवस्था की जो संकट थी वो सबसे बड़ी थी। अगर तीसरे पॉइंट पे हम अगर नजर डालें तो इसमें साफ बताया गया है कि अनुच्छेद जो है 48 में, जिसमें राष्ट्रपति को डिक्कू द्वारा शासन करने और नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और आपातकाल लगाने की शक्ति भी दी गई थी। ये बहुत बड़ी बात आती है यहाँ पर। अगर हम अनुच्छेद 48 की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान करने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ गया। अगर हम चौथी बात पे अगर ध्यान दें तो लोगों का लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से विश्वास उठ गया। जब लोगों के साथ बुरा होगा तो विश्वास उठ जाना एक स्वाभाविक बात रहती है। तो इसका सबसे बड़ा समस्या यही थी कि लोगों को लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से जो है विश्वास उठ गया। उसके पश्चात था पांचवा पॉइंट जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्षलाय में शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होने के कारण बीमर गणराज्य के लोगों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। यानी देखा जाए तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध जो हुई थी जिसके अंत में वर्षलाय शर्तों को स्वीकार करने के से मजबूर होने के कारण उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल सी गई थी, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में उनको देना पड़ा। जो हार गए थे देश उनको जो है इसकी भुगतान करना पड़ा। अगर इसकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो पूरा आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए जो है हिटलर वाली जो वीडियो मैंने बताई है वो देखना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के समय खराब हुई और कैसे जो देश हार गए उनको इसका जो है सजा भी दी गई और वो भी उनको पैसों के रूप में दी गई थी। यह एक कठोर और अपमानजनक संधि थी जहां पर जो है लोगों को मजबूर किया गया था। यह अपमानजनक संधि थी जिसे जर्मनी को मित्र राष्ट्र के साथ स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो हार गए और जर्मनी के जो राष्ट्र मित्र थे उनके साथ स्वीकार करना पड़ा। कई लोगों ने युद्ध में हार के लिए वर्षलाय की संधि की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बीमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया कि आपने के कारण ही हमें जो है इस समस्या से जूझना पड़ गया। कहते हैं 1923 में जर्मनी ने मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया, लेकिन जर्मनी ने साफ इनकार कर दिया कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका जिम्मेवार हम नहीं हैं और उसका जो मुआवजा देने की बात कही गई थी जिसको पहले स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में ये जो था इनकार कर गया कि हम इसका कोई भी जो है हर्जाना नहीं देंगे। और फ्रांसीसियों ने अपने कोयले का दावा करने के लिए अपने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूहर पर जो है कब्जा कर लिया। यानी ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ इन्हीं कारणों से हुआ कि रूहर पर जो है कब्जा इन्होंने कर लिया था। और जर्मनी ने निष्क्रिय प्रतिरोध और मुद्रित जो है कागजी मुद्रा का पेशकश की। संचलन में बहुत अधिक कागजी मुद्रा के साथ जर्मन चिन्ह का मूल्य भी काफ़ी गिर गया, और जब काफ़ी गिर गया तो जर्नल सी बात है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस तो आएगी और यही हुआ, ठीक है। तभी तो हिटलर का उदय हुआ, क्योंकि जर्मनी में देखा जाए तो बिल्कुल ही करेंसी का जो रेट था घट गया और स्थिति को जो हाइपर टेंशन कहा जाता है, यानी इस स्थिति को वहाँ के लोगों के लिए हाइपर टेंशन का नाम दिया गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो था काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि ना तो उसके पास जॉब थी ना ही खाने पीने की व्यवस्था थी। तो जनरल सी बात है लोग तो परेशान होंगे, जब लोग परेशान होंगे तो उसकी सरकार भी गिरेगी। उसके पश्चात अगर हम बात करें सातवां पॉइंट जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण में से माना जा सकता है, जिसके बारे में अभी कुछ देर समय पहले चर्चा किए थे कि बीमर गणराज्य को एक और अधिक जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कहते हैं ये संकट बहुत ही विचित्र और बहुत ही संभावनापूर्ण था। कहते हैं जो है 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में दुर्घटना होने पर, यानी
चेंज में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, यूएसए ने अपना समर्थन वापस ले लिया और ये बहुत बड़ी जो थी आर्थिक संकट का कारण बना। जब समर्थन आपस ले लेने की वजह से जो था बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट से जो है जर्मन जो है अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई और श्रमिकों में अपनी नौकरी खो दी या उन्हें कम मजदूर का भुगतान किया गया। यानी देखा जाए साधारण शब्दों में तो क्या किया गया, अगर ऐसे अर्थव्यवस्था संकट आती है तो सरकार क्या करती है, जो नौकरी पे लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनमें से छटनी कर देते हैं, आधे को हटा देते हैं, या क्या करते हैं उनके वेज जो होते हैं, पैसे होते हैं, तनख्वाह होते हैं, उसको घटा देते हैं। तो यही प्रावधान अपनाया जाता है हमेशा जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है। अगर आपको शायद याद हो कोरोना वायरस के टाइम जो भारत सरकार ने भी जो क्या किया था, जो सरकार जो है सरकारी अफसर सब थे उनके पैसे को डिक्रीज कर दिया था। अगर वो डिक्रीज नहीं करते, अगर वही वेज देते रहते तो भारत में भी जो था अर्थव्यवस्था जो क्राइस था वो आना स्वाभाविक बात था, जैसे कुछ दिन पहले हमें श्रीलंका में देखने को मिला है। तो यही जो थी, श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी और उन्हें कम मजदूरी का भुगतान भी किया गया और बेरोजगारी की संख्या जो थी 60 लाख तक पहुंच गई, जो कि बहुत बड़ी जो है संकट का घड़ी मानी जा सकती है। आर्थिक संकट ने लोगों में भय की भावना जो है पैदा कर दी। तो यहाँ पर जो मैंने 7 पॉइंट डिस्कस किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और संभवतः ये जो है एग्जाम में भी आने की चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन बेसिकली आपका बदल जाएगा लेकिन मतत्व वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा। The question is the second here, or discuss why the Nazism become popular in Germany by the 1930. There is a crisis time, economical crisis time. There is a Nazism is popular. Why popular? There is a why Nazism become popular in Germany 1930. There is a most important question here. There in 1999. The hair of their most important here Hitler is a full name Adolf Hitler. There is a 1989 Adolf Hitler took over to the German workers. There is a German is a worker the party and they are called to the Nazi party. Give a birth to Nazism in Germany. There is a most important here. In 1999 Adolf is a Hitler took over to German workers and party is called it is a Nazi party and give a birth to the Nazis is the Germany. Here during the Great Economical Depression, Nazism became a very popular. There is a most important point here. During the Great Economical Depression, Nazism became a very popular. The Nazis propaganda, which was a very unique, help in the making of Nazism very popular. There is a most important here. There are propaganda is a Nazism is very unique. There is a making of Nazism is very popular. In his a powerful speech, there is a most important here, a powerful speech. Hitler promised to build a strong nation and he restore the dignity of the Germans and provide to the employment for all. There is a most important word here. There a Germany is provide to the employment for all. And numerous public meetings were held by the Nazi party to instill unity among to the people. There is a most important here. And the next, the red banner. There is a red banner is also important for here a rising of Nazism. The Nazi is a suit and the rounded of the opposed the attracted there is a people and Nazism become a very popular. The meeting and projecting Hitler is a savior of Germany. The German people who were shattered after the First World War believed him. There is a most important here. And there Hindi come to the Hindi. दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 1930 तक जर्मनी में नाजीवाद क्यों लोकप्रिय हो गया। देखिए कोई लोकप्रिय क्यों होता है, जो जनता के साथ रहता है वो लोकप्रिय होता है और जो जनता के विरुद्ध होता है वो लोकप्रिय नहीं होता है। जैसे तिरपान स्टडी सेंटर अभी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन देखना जैसे ये बच्चों के लिए हेल्पफुल है, समय आने पर 100% देखना हर एक बच्चों के मोबाइल पर यही चलेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए बना हूँ और आपके लिए ही करना मेरा फर्ज होता है, दायित्व होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी उसे तभी जो है तिरपान स्टडी सेंटर ने इसको चूज किया है कि आखिर 1930 तक जर्मनी में नाजीवादी लोकप्रिय क्यों हो गया।
आप साधारण भाषा में जानने की कोशिश करें। देखिए, कोई व्यक्ति आपके समक्ष जो है सम्मानजनक क्यों हो जाता है? जब आपका कोई सहायता करता है ना, जनरल सी बात, कोई आपके हेल्प करता है तो इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा बन जाता है। यही आप भी सोचते हो और यही वहाँ की जनता भी सोच रहा था, क्योंकि जो हालत वहाँ पर जर्मन की थी, शायद उससे उबारना किसी एक अलग व्यक्ति का दायित्व थी। और यही सब जो है बातें जर्मनी में जो है हिटलर ने अपने भाषण में ये सारी बातों को उसने उल्लेख किया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कहते हैं कि सभी ने तो धोखा उनको दे दिया था, अब हिटलर की बात ही मान के वो उनको आगे बढ़ना था। और उन्होंने जो जो उनके वादा किया उनके हित में था। जैसे आप लोगों को भी वादा किया जाता है कि पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, तो आप भी कैसे कर जाते हो, उसी पार्टी को जिता के रख देते हो, क्योंकि आपको तो पानी बिजली फ्री चाहिए, लेकिन इसका नुकसान आपको नहीं पता है। बेशक हिटलर ने यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया, लेकिन कहते हैं एक द्वितीय विश्व युद्ध को भी तरफ धकेल दिया। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो हिटलर के कारण ही हुई थी। इसके विषय में अगर और जानना है तो आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसका जो है टॉपिक आपको जो है बीए के जो मैंने बनाया था, तो उसमें जो है आप देख सकते हो हिटलर की पूरी ज़िंदगी, जहाँ पर हिटलर कैसे कैसे कार्य करके जो है अपना जो है साम्राज्य को स्थापित किया और नाज़िज्म को बढ़ाया। तो यहाँ यही बात दर्शाता है कि 1930 में जर्मनी जो है नाज़िज्म क्यों लोकप्रिय हो गया। कहते हैं 1919 में जो है एडोल्फ हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी पर अधिकार कर लिया था, यानी धीरे धीरे ये उसका सदस्य था, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मन वर्कर्स पार्टी पर जो है पूरा अपना अधिकार कर लिया। यानी यहाँ पर आपको हिटलर का पूरा नाम भी आ गया, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। और ये जो था उसका एक सदस्य था, लेकिन उसकी भाषण के कारण क्या हुआ, वो धीरे धीरे पूरे पार्टी पर अपना अधिकार कर लिया और जर्मन में नाजीवादी का जन्म देते हुए इसी नाजी पार्टी कहा गया। लेकिन बाद में इसका जो है नाजी पार्टी के नाम से जो है इसको विख्यात मिली। तो यही यहाँ पर शुरुआत था, शुभ आरंभ था नाजी पार्टी का स्टार्ट होना, यानी वर्कर पार्टी जो थी आगे चल के नाजी पार्टी में कन्वर्ट हो गया, यानी 1919 में। महान आर्थिक मंदी के दौरान नाजीवाद बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि लोकप्रिय होने के कारण ये था कि ये लोगों की हर एक बात को प्रायोरिटी देता था। नाजी प्रचार को बहुत ही अनूठा था, जो नाजीवाद को बहुत लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मदद की। अपने शक्तिशाली भाषण में हिटलर ने एक मजबूत राष्ट्र बनाने, जर्मनी की गरिमा को बहाल करने और सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया। लोगों के बीच जो है एकता स्थापित करने के लिए नाजी पार्टी द्वारा कई जनसभाएं आयोजित किया, यानी लोगों को दिल जीतने के लिए हर संभव नाज़िज्म ने हर संभव कोशिश किया और लोगों के जो दुख थी उस पर उसने हाथ दिया और उसको सहारने की कोशिश किया, जिसकी वजह से लोग जो थे नाज़िज्म के साथ चले गए और उसी को जो है अपना राज्य घोषित कर दिए। उसके पश्चात था लाल बैनर। देखिए, लाल बैनर का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था इस समय। कहते हैं लाल बैनर नाजी स्टील्स और तालियों गड़गड़ाहट ने लोगों को आकर्षित किया और नाजीवाद बहुत लोकप्रिय हुआ। बैठकों में हिटलर को जर्मनी के उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया गया, यानी उद्धारकर्ता, यानी जो संकट के ग्रसित लोगों को उबारने का जो है के रूप में पेश किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिखर चुके जर्मनी के लोगों ने उस पर विश्वास करवा दिया गया कि ये हिटलर ही आपका जो है अन्नदाता बनेगा। तो लोगों ने क्या किया, जब कहते हैं सब हर जगह से दुखी बंदे हो जाते हैं, तो जो व्यक्ति उसको आगे बढ़ाता है वही आगे लेके चल जाता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। वही हुआ जर्मनी के लोगों के साथ और यही बात यहाँ दर्शाया भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आया है थर्ड, व्हाट आर द पेक्युलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। पेक्युलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द पेक्युलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग आर follows. There is the most important here. Nazi is ideology was the same as Hitler is the world view. The Nazi's ideology was to there is a some as a Hitler is a world view. According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchies. And in this view, the is blonde, blue eyes, Nordic germs. Aryan, where at the top is called to the desirables and will the jobs undesirable. There is job is undesirable. That is the most important, and where place at the lowest is wrong. The Hitler is Russians was the influenced by the thinker like
Charles, Drawings, and Dravens, and the Herbert Spencer. Their Nazis agreement was simply there is a strongest race would be survive, there is a big ones would be perishes. There is the most important here. The Hitler believed in there is a living rhizome and the living space. And the new territories have to be conquered to be increase the living space. There is a Hitler is a main aim. The Nazis want to a society of pure and healthy the Nordics Aryan. It means that is even those is a Germans is who were to see seen as the impure or abnormal had no right to live. Under the euthanasia program, the Nazis condemned need to be death many of Germans who were mentally and physically unfit. They are the most important. But as soon as Hitler is come to power, he tried to eliminate the undesirables, and there is a guidepost, and the Nazis proceeded to be rise. There is a murderers, racial idols. There is the most important also. The Zaps is reminded that is a worst is a suffer is a Nazi Germany, and this is called undesirable. The Hitler is a hearted for the jobs was based on the is the pseudo-scientifics and theories of the racial. Pseudo-scientifics is the theories of the racial which held the is a conservations was no solution. There should be a completely eliminated. There is the most important and come to the Hindi here. देखिए इस क्वेश्चन का सिर्फ अर्थ ये है कि नाजी सोच की खासियत क्या थी, जो नाजीलिज्म थे यानी जो हिटलर था आखिर उसकी सोच की क्या विशेषता थी, क्या सोच के वो आगे जो है अपना जर्मनी पे जो है प्रभुता स्थापित करने में हर संभव सक्षम हो गया। ठीक है, तो उस समय की स्थिति आपको पता ही होगा, जैसे हम पहले दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल चरमरा सी गई थी, और कहते हैं कि 60 लाख बेरोजगारी होना आम बात नहीं था और लोग बहुत ही हताश हो गए थे। तो इस कंडीशन में जो है हिटलर ने उनको ऐसी सोच विचार दिया जिसको उनको मानने के सिवा कोई और चारा नहीं थी। तो यही बात यहाँ आती है कि नाजी सोच की खासियत क्या थी, आखिर नाजीलिज्म में जो व्यक्ति विश्वास करते थे उनकी क्या खासियत थी, क्या हिटलर की सोच थी कि कैसे जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही बात की विशेषताओं पर जो है हम यहाँ प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिटलर की सोच क्या थी, यानी नाजीलिज्म को मानने वाला हिटलर आखिर किस सोच के साथ आगे बढ़ा। तो नाजी विचारधारा हिटलर के जो है विश्व दृष्टि के समान थी, यानी वो विश्व को अपने व्यू से देख रहा था, पूरा वर्ल्ड को अपने व्यू से देख रहा था, और इसके अनुसार लोगों के बीच कोई जो है समानताएं नहीं थी। ठीक है, समानताएं नहीं थी बल्कि केवल एक नस्लीय पदानुक्रम था, यानी जो हिटलर था वो लोगों को एक सामान्य दृष्टि से नहीं देखता था, उसके समक्ष सिर्फ केवल नस्लीय पदानुक्रम था, यानी नस्ल के रिगार्डिंग वो देखा करता था। इस दृष्टि से गोरे नीले आंखों वाले नासिक जर्मन आर्य शीर्ष पर थे, यानी जो थे कहते हैं गोरे थे, नीले थे, आंखों वाले थे, यानी जिनकी ये खासियत थी वो सबसे ऊपर शीर्ष पे थे, जिन्हें वांछनीय कहा जाता था उस समय, जबकि अयहूदियाँ यानी अवांछनीय को सबसे नीचे पैदान पर रखा गया था। यानी आपको पता होगा कि अयहूदी यानी जॉब्स को जो है वो बिल्कुल ही नकार दिया था। आपने नाजीलिज्म के रिगार्डिंग जो है एक स्टोरी भी पढ़ा था, एक नॉवल भी पढ़ा था जो कि एनी फ्रैंक का था। ठीक है, एनी फ्रैंक का जो था आपने पढ़ा होगा डायरी ऑफ यंग गर्ल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसमें साफ जो है समझाने के लिए पर्याप्त था कि उस समय नाजीलिज्म में जो था जैब्स को बिल्कुल ही नकार दिया गया था, उनको अनवांछनीय माना गया था, और वो जो थे छुप छुप के अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिसको एनी फ्रैंक ने साफ शब्दों में अपने लैंग्वेज में छोटे उम्र होते हुए भी उसने इस बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया था कि कैसे भेदभाव होता है। अगर आपने नई नोवेल पढ़ा है तो पढ़ लेना, जान लेना। वैसा ही कंडीशन यहाँ पर जो है हिटलर का विचारधारा था कि वो सिर्फ आर्यन लोगों को ही प्रायोरिटी देता था, यानी देखा जाए तो जो गोरे थे, नीले थे, नीले आंखों वाले जो नासिक जर्मनी आर्य शीर्ष पर ही उनको ही उसने प्रायोरिटी दिया, लेकिन जो यहूदी थे, जो अवांछनीय थे, उनको उसने नीचे पैदान पर रखा। जैसे कि एनी फ्रैंक यानी इस डायरी ऑफ द यंग गर्ल वाली जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें साफ इस बात पे जाहिर किया गया था कि उसमें उस समय जॉब्स वाले के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता था।
हिटलर का जो है नस्लवाद चार्ल्स डार्विन और हेर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों से भी काफी प्रभावित था। नाजी तर्क सरल था, सबसे मजबूत जाति जीवित रहेगी, कमजोर लग नष्ट हो जाएंगे, इस भेदभाव पे वो आगे चलता था। यानी हिटलर का बिल्कुल यही विचारधारा था कि सबसे मजबूत जाति जीवित रहेगी और कमजोर लोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने जो है चार्ल्स डार्विन और हेर्बर्ट स्पेंसर के भी रूल में यही बात लिखी गई थी कि जो संघर्ष करेगा, जो आगे बढ़ेगा, वही जीवित रहेगा। और यही हिटलर की विचारधारा था कि जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो कमजोर होगा वो नष्ट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो हिटलर पे जो है चार्ल्स डार्विन और हेर्बर्ट स्पेंसर का विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था और यही सोच ने उसको जो है वहाँ का जो है सम्राट बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ा। हिटलर जो है लिबरेशंस या क्या रहने की जगह में विश्वास करता था। यानी वह हिटलर जो था लेबेंसरम्स या रहने की जगह में विश्वास करता था, रहने की जगह बढ़ाने के लिए नए प्रदेशों को जितना चाहता था। यानी हिटलर का एक ही मंशा था कि जितना हो सके देशों को जीत के जो है अपने देश में मिला के पूरे साम्राज्य की स्थापना करना था। जैसे आप जानते ही होंगे हमारे देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा आए जो राज्य किया और पूरे देश में जो है अपना प्रचंड लहराया। वही हिटलर का भी महत्व था कि हिटलर भी चाहता था कि हर देश जो है, हर एक कंट्री जो है उसके अंदर रहे। तो इसी विचारधारा से जो पूरे विश्व के साथ उसने जो है द्वितीय विश्व जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं कारणों से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ हिटलर था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, जानिए समझिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उसके विचारधाराओं के कारण जो है विश्व युद्ध सेकेंड हुआ। हिटलर का मानना था कि नाजी शुद्ध और स्वच्छ नागरिक आर्य के समाज चाहते थे। यानी नाजिज्म का एक ही विचारधारा था कि वो शुद्ध और स्वच्छ नागरिक आर्य का समाज चाहते थे, वो जॉब्स वालों को रहने नहीं देना चाहते थे। इसका अर्थ था कि जिन जर्मनियों को अपवित्र या असामान्य के रूप में देखा जाता था उन्हें भी जीने कोई अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल ही जो हिटलर का विचारधारा था कि जो अपवित्र हैं, जो असामान्य हैं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिटलर का सबसे भयंकर विचारधारा था जो कि बिल्कुल ही एक क्रूरता की तरफ ले जाता है। कहते हैं इच्छा मृत्यु कार्यक्रम के तहत नाजी ने कई जर्मनों के मौत की सजा दी जो मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य थे। देखिए, ये क्रूरता का सबसे बड़ा परिचालक था हिटलर का नाजिज्म को मानने वालों के लिए। देखिए, उसने सारे जितने भी कमज़ोर लोग थे, जो मानसिक तौर से बीमार थे, अयोग्य थे, उसको इच्छा मृत्यु यानी स्वयं ही मृत्यु को गोद में सुला दिया था। ये बहुत बड़ी जो है उसकी थिंकिंग थी कि नाजी ने कई जर्मनी को मौत की सज़ा दी और जो मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य थे उनको उसने मरवा दिया। सत्ता में आते हिटलर ने अवांछिताओं को जिप्सी को ख़त्म करने की कोशिश की। नाजियों को अपने जानलेवा नस्लीय आदेश को साकार करना जारी रखा। यानी इसने जैसे ही सत्ता उसको मिला हिटलर को, उसने क्या किया, सभी व्यक्तियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ पर जो है हिटलर का विचारधारा के रूप में कि यानी इतने भयंकर विचारधारा रखने वाला हिटलर कैसे जो है वहाँ का शासक बना। देखिए, शासक उस समय स्थिति ऐसे पैदा हो रखा था कि हम वहाँ न चाह के भी इसको लाना वहाँ के लोगों के लिए जो है मजबूरी बन गई थी। क्योंकि आपने जाना ही होगा कि 1929 के आसपास जो आर्थिक संकट थी वो देश को बिल्कुल ही ख़त्म करने के कगार पे था। वो लोग सोचते थे ऐसे ख़त्म होने से अच्छा है किसी से ख़त्म हो जाए तो बेटर रहेगा। तो उसीलिए जो है हिटलर को जो है उन्होंने प्रायोरिटी दिया और हिटलर ने आश्वासन भी दिया कि वो बेरोजगारी को दूर करेगा, यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छे शासन लागू करेगा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो सज़ा जर्मनी के लोगों को मिला था उससे वो उबार रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में वो बिल्कुल ही खोखला हो गया था जर्मनी और इसके उबार सिर्फ हिटलर ही सकता था। क्योंकि कुछ सख्त नियम रेगुलेशन चाहिए था, वो हिटलर के पास में ही था, इसलिए लोगों ने विरोध नहीं किया, उसको ही शासक बना दिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं यहूदी नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे। यानी देखा जाए तो नाजिज्म के जितना सालों तक अपना राज्य रखा, सबसे अधिक पीड़ित जो थे वो सिर्फ एक ही थे, वो थे यहूदी। ठीक है, यहूदी के जो था बिल्कुल ही जो है उन्होंने परेशान और पीड़ित करके रखा था, उन्हें अवांछनीय कहा जाता था। और यहूदियों के लिए हिटलर की नफरत नस्ल के छल जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी देखा जाए तो इसकी
जो हिटलर की नफरत थी और नस्ल के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके अनुसार धर्मांतर कोई समाधान नहीं था। यानी कोई व्यक्ति धर्मांतर भी नहीं कर सकता था, धर्म भी नहीं बदल सकता था। क्या हिटलर का मानना था कि धर्म भी बदल लेने के बाद भी वो उसी जाति के थे और उनके बॉडी शरीर में जो है वही खून दौड़ रहा है। तो ये उसका हिटलर का सबसे बड़ी नफरत की एक आग थी। इनका पूरी तरह से सफाया किया जाना चाहिए। यानी नाजिलिज्म के अंतर्गत वो हर एक यहूदी को ख़त्म करना चाहता था और हर एक अपवित्र व्यक्तियों को ख़त्म करना चाहता था, हर एक मानसिक शारीरिक बीमार व्यक्तियों को जो है ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि ये सिर्फ बोझ होते हैं। तो यही सोच के वजह से जो है यहाँ पर हिटलर जो है कहा जा सकता है कि ये इसकी सोच विचार थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिटलर किस विचार का सोच रखता था, तो आपने जो मैंने समझाया है अगर आप वो भी लिख देते हो तो एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा। The explain why the Nazis propaganda was effective in the creating a hatred for jobs. देखिए jobs is most important here, and there is the films were made to the create a hatred to the Japs. The film there is external Jap, show their Jap with the flowing wearing to dress in the captains, and the Japs were referred to be a vermins and the rat and pest. Nazis propaganda is compared to Jap to the rodents. There is the most important is this view of show of the diary of young girls. There is the most important novel here, and the orthodox is a Jobs Wara is a stereotyped as a killers of the Christ and money lenders, and stereotypes is about Jobs where is a even is a popularized through the math classes. The children were tough to be hate the Japs, and the Nazi propaganda against the Japs was so effective that is a people is a felt anger and hatred sure inside them to when they say is a someone who is looking like a Japs. There is a most important propaganda here or Nazis. अब यही बात यहाँ पर आया है कि यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने में नाजी का प्रचार क्यों प्रभावित था, समझाइए। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने पहले तीसरे क्वेश्चन में इस बात पे डिस्कस किया था कि यहूदियों के लिए जो था किस प्रकार से जो था हिटलर का विचारधारा था। लेकिन यहाँ पर है कि आखिर इतनी भयंकर विचारधारा को लोगों ने इतनी आसानी से क्यों जो है एक्सेप्ट कर लिया, यानी यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने में नाजी प्रचार क्यों प्रभावी था, यानी लोग इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे, अपने ही लोगों के साथ ऐसा दुराचार करने के लिए जो उसके विचारधारा को क्यों समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ बहुत बड़ा जो है प्रश्न उठ रहा है। तो आपको अगर इस प्रश्नों को अच्छा से करना है तो इसको नोट भी कर लीजिए कॉपी पे। कहते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको कर लेने में ही फ़ायदा है, नोट करके इसको अच्छे से याद कर लेने में ही फ़ायदा है। सिर्फ देख के आप जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसके वर्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप अच्छे से जो है इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे और उसको याद कर लो। जब तक ये आपको याद नहीं होगा ये जो है आपका नहीं होगा। तो इसी विचारधारा जो है मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर इस बात को मानोगे और कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर करोगे। तो ये बात यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि आखिर इतने नफरत की विचारधारा के बावजूद भी जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने आखिर जो है हिटलर को एक्सेप्ट क्यों किया। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि भाई जिसका विचारधारा इतना भयंकर था, मान लीजिए किसी भी घर में मानसिक तौर से शारीरिक तौर से लोग बीमार हो सकते हैं, फिर भी लोगों ने इसकी विचारधाराओं को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं जो हिटलर को वहाँ से भगाया। तो यही बात यहाँ पर आता है कि यहूदियों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए फिल्में बनाई गई। देखिए कितना इम्पोर्टेंट यहाँ बात आया कि वहाँ पर हिटलर ने क्या लिया, फिल्मों की सहारा लिया और फिल्में उसके ऊपर बनाई गई। फिल्म द इंटरनल ज्यू में यहूदियों को जो है लहराती दाढ़ी और कफ्तान पहने दिखाया गया। यहूदियों के जो है बर्मन चूहे और कीट के रूप में जाना जाता था। नाजी प्रचार की यहूदी की तुलना जो कुर्तलन से की गई। यानी देखिए फिल्मों के अंतर्गत जो है यहूदियों से नफरत करने के लिए प्रचार किया गया। रूढ़वादी यहूदियों को जो है मसीहा के हत्यारे और साहूकारों के रूप में चित्रित किया गया था। गणित की कक्षाओं के माध्यम से यहूदियों के बारे में
जरूरवादियों को भी लोकप्रिय बनाया गया। बच्चों को यहूदियों से नफरत करना सिखाया गया। यहूदियों के खिलाफ नाजी प्रचार इतना प्रभावी था कि जब उन्होंने किसी यहूदियों की तरह दिखने वाले व्यक्ति को देखता तो उसके अंदर क्रोध और घृणा का भाव जो है उमड़ पड़ा। देखिए कितनी यहाँ पर नफरत फैलाई गई, और नफरत किस में, बच्चों में भी नफरत इस बात को डाली गई कि और यहूदी जो होते हैं उनके नफरत के काबिल होते हैं, और इसको फिल्म बना के भी दर्शाई गई। तब जाके लोगों में जो है इसके प्रति नफरत हुई। कहते हैं बच्चे नहीं जानते हैं अच्छा और बुराई का, लेकिन सिखाने वाले व्यक्ति ही जो है उसको आगे बढ़ा देते हैं। बच्चों को नहीं पता था कि भेदभाव क्या होती है, लेकिन जब शिक्षाएं ही नफरत के ऊपर दिए जाने लग गए तो साधारण सी बात है कि बच्चों में घृणा पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। जैसे आप भी देखते हो कि जो पाकिस्तान के व्यक्ति होते हैं, वहाँ के बच्चे होते हैं, भारत के लिए जो है जहरें उगल रहे होते हैं, लेकिन उसको किसने सिखाया? लोग ही सिखा रहे हैं, लोग ही नफरत भर रहे हैं। तो यही बात आ रहा है कि ये नफरत का जो है उसने जो बीज बोया वो हर जो है जर्मनी में फैल गई, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी यही घृणा की बातें सिखाई गई, जिन कारणों से नफरत की जो है होते हुए भी जो है लोगों ने बहुत काफ़ी प्रभावित हुए और काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो था यहाँ पर जो हिटलर ने यूज़ किया, जो कि एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए कैसे भी क्वेश्चन आपके समक्ष आ सकता है बन के, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जो यहूदियों के लिए नफरत फैलाने वाली नारा विचारधारा दिया गया, तो आखिर ये क्यों प्रभावित था? क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में जो था हिटलर ने पहले से ही यहूदियों के प्रति जो है बीज डाल दिया था कि ये अशुद्ध खून होते हैं, ये अपवित्र होते हैं, इनको देखना भी पाप होता है। जब इतने विचारधारा गंदे गंदे दे देते हैं तो बच्चे के जो मस्तिष्क है वो उनके प्रति देखा गया है यहाँ पर कि कोई भी यहूदी व्यक्ति की तरफ दिखने वाले व्यक्ति देखा तो उसके अंदर क्रोध और घृणा की भाव उमड़ पड़ती थी। अब इन्हीं लाइनों से पता लगता है कि छोटे छोटे बच्चों में कितनी घृणा जो है हिटलर ने फैला दिया था। तो here explain what a role women had on Nazi society. There is a most important question from the women. What is they explain the role of the woman as had in the Nazi society. The Nazi Germany boys were told to the aggressive and still is hearted. Girls were told that had to become a good mothers and rear pure-blooded Aryan children. That is the most important here. The boys here are told be aggressive, but there is the girls is become a good mother and here to the pure-blooded Aryan children. God had to protect their purity of germs race, and they had took after their home and Nazi value had to the top to be children. There is the most important here. Women who produce a desirable children were added. They got a better treatment in the hospitals and got a concession in the shops and theaters, tickets and railway fares. Honors is a cross were to the awarded to the woman. A bronze cross was awarded to the woman for 4 children, and silver cross for the six children, and gold for the 8 or more children. There is a most important propaganda for Nazism here. There is the most important for the woman. Therefore, if the children produce a woman, there is awarded for here a most important Bronze Cross, and is a 6 children produce, and there is a silver cross, and there are here a birth of is 8 and more children. अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने समझ लिया होगा कि कितने जो है भयंकर रूल रेगुलेशन हिटलर ने बनाए थे अपने समय काल में, जिसको सुन के भी हमें जो है हैरानी होती है, समझ के भी हमें जो है बहुत काफ़ी आश्चर्य होता है कि इस तरह के जो है रूल रेगुलेशन बनाना एक स्वाभाविक नहीं थी। लेकिन क्या करें, कहते हैं जब सब जगह से बुरा हो तो कहते हैं बुरे लोग को चलना ही इंसानों की फितरत बन जाती है।
तो यही बात यहाँ पर भी आती है। हमारे भी देश में देखते हो, जब लालच की पिटारा खोलते हैं तो लोग जो होते हैं बड़े ही सुचारू रूप से आकर्षित हो जाते हैं और अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो कहते हैं जब आपके अंदर लालच की भावना रहेगी तो बुराई जो है आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन अगर आप सच्चे राह पे चल रहे हो, सच्ची बातें कर रहे हो और एक जो है नीति संगत बातें कर रहे हो, तो आपको बुरी बात बुरी ही लगेगी और अच्छी बात अच्छी ही लगेगी। कहते हैं उस समय जो हालात थी वहाँ पर जो है हिटलर की बातों के सिवा किसी और बातों को आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता। आपने देखा ही होगा कि लोग जो होते हैं अपनी लालच की मंशा को पूरा करने के लिए हर संभव जो है लोगों को जो है अपनी अपनी तरह से प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी जो है मनोरथ पूरा हो जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके समझ प्रस्तुत करने की ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग स्वयं ही समझदार हो। यहाँ 5वां क्वेश्चन हमें यही बात बताती है कि स्पष्ट कीजिए कि नाजी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। आखिर नाजीलिज्म के अंतर्गत महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जाता था। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि नाजी जर्मनी में लड़कों को जो है आक्रामक और जो है फौलादी दिल बताया जाता था। यानी आपको लग रहा होगा कि पहले ही जो है लड़कों के अंदर भेदभाव की एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा यूज़ की जा रही थी यहाँ पर। यानी लड़कों को शुरू से यही बात बताई जाती है कि वो काफ़ी आक्रामक होते हैं, फौलादी दिल बताया गया था। जैसे हमारे भी समाज में एक बात बताई जाती है कि लड़कियों का कोई काम नहीं है, ठीक है, लड़कियां को तो है शादी करके अपने घर जाना है और उनको पढ़ लिख के कुछ नहीं होता। तो ये जो प्रोपेगेंडा था उस समय भी यूज़ की जाती थी। लड़कों को फौलादी और आक्रामककारी मानते थे। तो कहते हैं अगर बकरी को अगर शेर की शिक्षा दोगे तो वो शेर ही बन जाता है, अगर शेर को बकरी की शिक्षा दोगे तो वो बकरी बन जाता है। तो ऐसा ही प्रोपेगेंडा यहाँ पर जो है नाजी समाज में यूज़ की जा रही थी महिलाओं और जो है बच्चों के प्रति। लड़कों को आक्रामक और जो है फौलादी दिल बताया जाता था और लड़कियों से कहा जाता था कि उन्हें अच्छी माँ बनना है और शुद्ध रक्त वाले आर्यन बच्चों को पालना है। अब देखिए इनका जो है कैसा काम में इनको बांट दिया गया। लड़कों को जहां फौलादी आक्रमणकारी बनाया गया, वहां लड़कियों से सिर्फ इतनी सी बात बताई गई, इतनी ही बात पढ़ाई गई कि आपको अच्छे माँ बनना है और शुद्ध रक्त वाले आर्यन बच्चों को पालना है। ये कहाँ की विचारधारा था कहाँ का? हिटलर का था। लड़कियों को जो है जर्मन जाति की पवित्रता की रक्षा करनी थी, ठीक है, उन्हें अपने घरों की देखभाल करनी थी और बच्चों को नाजी मूल्य की शिक्षा देनी थी। यानी नाजीलिज्म के जो हिटलर ने शिक्षा बनाई थी उसी पे जो है बच्चों को आगे समझाना था और बच्चों को इसी राह पे लेके चलना था। तभी तो हमने चौथे क्वेश्चन में इस बात पे पूरे गौर किया था कि अगर यहूदी के शकल जैसे दिखने वाले कोई भी व्यक्ति को जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही बुरी नज़रिए से देखा करते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपके समक्ष पता भी होगा कि नोवेल लिखी गई थी, ठीक है, एनी फ्रैंक के अंतर्गत, यानी डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो इसमें पूरी तरह से जो है एनी फ्रैंक ने साफ शब्दों में बताया था, बहुत कम उम्र में उसने बताया था कि वहाँ पर यहूदियों के साथ कैसा जो है विचारधारा रखी जाती है और कैसा नफरत हो वहाँ पर फैलाया जाता है। और वो बात कोई झूठ नहीं थी, बहुत बड़ी सच थी। तभी जो जाके ये नोवेल जो थी पूरे विश्व में जो है काफ़ी फेमस हो गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात वहाँ पर जो है एनी फ्रैंक ने बताई, जिसको हमें जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस तरह से जो है वहाँ पर भेदभाव होती है। और इस क्वेश्चन ने भी इस बात को साफ शब्दों में बता दिया कि वहाँ पर औरतों का काम था सिर्फ बच्चों को जन्म देना, पालना और उसको जो है सिर्फ जो है नाजीलिज्म की शिक्षा देना। वांछनीय संतान पैदा करने वाले महिलाओं को पुरस्कृत किया जाता था। देखिए जो वांछनीय संतान पैदा करते थे, जो एप्लीकेबल होती थी, उन्हें अस्पतालों में बेहतर इलाज मिला, दुकानों में थिएटर टिकट और रेल किरायों में रियायतें मिलने लग गई। महिलाओं को ऑनर क्रॉस प्रदान किए गए। महिलाओं को 4 बच्चों के लिए एक क्रॉस जो है कांस्य क्रॉस दी गई, 6 बच्चों के लिए चांदी क्रॉस दी गई और 8 से अधिक बच्चों के लिए सोने का क्रॉस दिया गया। अब समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है हिटलर ने किस तरह के नीति को अपनाया, जो कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं कह सकता है। लेकिन क्या करें, कहते हैं उस समय हालात ही ऐसी थी कि ऐसे जो है व्यक्तियों की विचारधारा पे आगे चलना
बन जाती है। तो देखा जाए अगर हम सारी बातों को अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो वहाँ पर देखा जाए तो नाज़िलिज़्म में समाज में महिलाओं की भूमिका जो थी बहुत ही एक बच्चे पैदा करने के सिवा कोई भी उनके समक्ष भूमिका नहीं थी, और उनका सिर्फ एक ही बात था कि एक नया हिटलर को जो है बनाना था। यही विचारधारा से हिटलर ने ये सारी रूल रेगुलेशन को बनाया था। यानी इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भूमिका जो है बच्चों को जो है जन्म देना और बच्चों में जो है यहूदियों के लिए नफरत पैदा करना, यही दो कार्य महिलाओं के लिए उस समय अंतराल में रह गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा 6वां, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम अगले वीडियो में इसके करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में अच्छे से आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और भूलना ये भी नहीं है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। तो जितना हो सके इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि आपने हिटलर नहीं बनना है, आपने एक अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में भी आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। सोचना नहीं है, जितना हो सके शेयर करना है और सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना है। So here is the most important question number 6. There is the last question for our topic. In what way did the Nazi state seek to establish a total control over its people? There is the most important question here. In what way did the Nazi state seek to establish total control over its people? The Nazi state tried to establish a total control over its people, a special force. There is a most important here, or a special force were created to control the society in the way Nazis wanted. Apart from SAR, the storm troopers and the regular police, who is wore to the green uniform, and this included to the Gestapo is a secret state policy, and SS. There are protection squads, criminal police, and security service SD. They were given extra constitutional power that give the Nazi state is a reputation as the most is disregarded as a criminal state. There is the most important people where is the tortured is the Gestapo is the chambers and sent to the concentration camp. The concentration camp is here most important for Jews. The people were arrested without any legal procedure. There is the most important Avalon. There is the diary of young girl. There is Annie Frank. Annie Frank told here that every Jews are sent to the is a concentration camp, and the people were arrested without any legal procedure. There is the most important here. Nazis is the rule regulation here on the society. यहाँ पर देखा जाए तो नाजी राज्य किन तरीकों से अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अगर नियंत्रण होता है, आपने देखा भी होगा इस बात का, आपने थोड़ा समझने की कोशिश भी किया होगा, क्योंकि ये ऐसा हालात आपके समक्ष भी आया था जब कोरोना वायरस था। सरकार की तरफ से ये थी आदेश कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, तो आपने देखा था कि हर एक तरफ से पुलिस लगा दिया गया था, लोगों को मार मार के डंडे घरों में जो है उनको कैद कर दिया गया था। और मान लीजिए ऐसा सिचुएशन अगर रहा तो क्या होगा। ऐसा ही सिचुएशन वहाँ पर हिटलर ने पैदा कर रखा था हर एक क्षेत्र में, और इसका जो है आपने डायरी ऑफ यंग गर्ल के चैप्टर में साफ समझ लिया होगा। और एनी फ्रैंक ने साफ जो है इस बात को चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है जैप्स होने के कारण उसके सब्जी वाले को भी उठा के ले जाया जाता है और उसको कहाँ भेजा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। अब सोचिएगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप होती क्या है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता है जहाँ पर अगर आप अमेरिका विदेश जाने की अगर इच्छा रखते हो तो अगर वहाँ पर अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आपके समय काल ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर पुलिस आपको अरेस्ट करके वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देती है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप होती क्या है। और वहाँ पर जो है उनके प्रति कोई भी रूल रेगुलेशन वो अपना सकते हैं, कोई भी क्रूरता दिखा सकते हैं।
ठीक है। तो वो इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे भारत में भी कंसंट्रेशन कैंप की न्यूज़ वालों ने धज्जियां उड़ा रखा था, और ये झूठी खबर थी कि सच थी वो तो न्यूज़ वाले ही जानेंगे, लेकिन लोग में बहुत ही इसका आक्रोश था। और इसका शाहीन बाग में जो है आपको पता है दिल्ली में इसके लिए धरना भी दी गई थी कि लोगों को यहाँ से जो है खाली कराने की कोशिश सरकार कर रही है, ऐसे ऐसे झूठे अफवाह फैलाई गई। लेकिन इस बात को किसी ने समझने की कोशिश नहीं किया कि ये सिर्फ इस बात के लिए आधारित थी कि कोई भी विदेशी हमारे देश में रहता है और बिना अनलीगल रहता है तो उसको जो है यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता है। तो यहाँ के लोगों ने ये समझा कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं उसी को कंसंट्रेशन कैंप में जो है सरकार भेज रही है, जिसकी वजह से शाहीन बाग में आपको पता है जब कोरोना वायरस खत्म हुई तब जाके जो है उनकी हड़तालों को तोड़ा गया। तो ये शायद आपको पुरानी बात याद हो चाहे ना हो, ये तो आपको पता होगा स्वयं ही। तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया है कि नाजी राज्य ने किन तरीकों से अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यानी नाजी यानी जो है हिटलर ने वहाँ के लोगों को पूरी नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाया। तो आप समझ सकते हो कि शक्ति के सिवा कोई कदम दूसरा हो ही नहीं सकता। जहाँ पर हमने 5वां क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि औरतों को जो है एक बच्चा जन्म देने का एक मशीन बना दिया गया था, और इवन इसके लिए इनाम और प्राइज़ भी दी जा रही थी, और कई जगहों पर छूट भी दी जा रही थी, और उनका सिर्फ एक ही विचारधारा दिया गया था कि आप बच्चों को जो है ये समझाइए कि जो है नाजिलिज्म को ही मानने वाले रहे, बाकी जो अनप्योर ब्लड है उनसे वो नफरत करे। और इसका चौथा क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि वहाँ के बच्चे जो थे इतने नफरत थे कि नाजी यानी यहूदियों को देखते ही उनके अंदर जो है क्रोध की भावना भड़क जाती थी। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं अगर आपने समझने की कोशिश किया होगा तो। ठीक है, अगर आपने अभी भी इस क्वेश्चनों को नोट नहीं किया है तो दोस्तों नोट जरूर कर लो, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप आलस्य भी कर रहे हो। आलस्य करना दोस्तों कहीं का भी कार्य नहीं है। जिसको जो चीज़ प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं करोगे तो आपको इसका तकलीफ जो है जब रिजल्ट आएगा तब प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आपका अच्छा से अच्छा हो तो इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तभी जाके जो है एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे और जो वहाँ पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर इसी बात पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से जो है लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो नाजी राज्य में अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का सदैव प्रयास किया। नाजियों की तरह समाज को नियंत्रण करने के लिए विशेष बल बनाए गए, यानी विशेष बल बनाया गया, यानी यहाँ पर फोर्स बनाई गई। कहते एसए तथा स्टाफ यूज नीति के पुलिस के अलावा जो हरे रंग की वर्दी पहनी थी उन्हें जो है प्रेस्टोपो यानी गुप्त राज्य पुलिस और 2 सुरक्षा दस्ते यानी एसएस आपराधिक पुलिस और सुरक्षा सेवा शामिल थे। उन्हें अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियां भी दी गई थी जिससे नाजी राज्य को सबसे खतरनाक आपराधिक राज्य के रूप में प्रतिष्ठा किया गया। लोगों को जो है गेस्टापो कक्ष में प्रतिस्थापित किया गया और एक गर्ता शिविर में भेज दिया गया। लोगों को बिना किसी कानून की प्रक्रिया गिरफ्तार भी किया गया। देखिए वहाँ पर नियंत्रण पाने के लिए नाजी सरकार ने हर संभव कोशिश किया, यानी हिटलर ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर नाजिलिज्म को नहीं मानता है या उस पर आक्रोश पैदा करता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और इवन कि वहाँ मृत्यु दंड देने का भी अधिकार था। और जो भी लोग ऐसे पाए जाते हैं अगर उनकी ब्लड प्योरिटी नहीं है तो उसको सडनली जो है उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाए, और वहाँ पर भेज के जो है उनको गिरफ्तार करके उन पे हर तरह के जो है शारीरिक जो है दंड दिया जाए। यहाँ तक देखा जाए तो उनकी मृत्यु तक भी हो जाती थी। वहाँ पर अगर शिविर में आप देखोगे तो ये नहीं है कि शिविर में भेज दिया तो उनके लिए हर तरह से सुचारू रूप से उनके खाना भोजन की व्यवस्था किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर आपको जैसे पता है कि जिस समय हिटलर जो है सत्ता में आया था उस समय जो था इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी, यानी अर्थव्यवस्था संकट चल रहा था, तो वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, और जो लोग समाज में रह रहे थे जो जैव्स थे यानी यहूदी थे उनको ज़बरदस्ती हिटलर पकड़ के उसको जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दी जाती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है एक ही किताब जिसको आपको कई बार बता चुका हूँ, अ डायरी ऑफ यंग गर्ल, जहाँ पर उसको भूख प्यास से जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई थी फेंक के। तो बहुत बड़ी बात यहाँ आती है कि उस समय खाने को भी नहीं था। तो इस तरह से अगर आप कोई कंसंट्रेशन कैंप में चला जाता व्यक्ति तो वो तरफ तरफ के वहीं पर ही दम तोड़ देता।
और ये 6 मार्क क्वेश्चन के अंतर्गत जाता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपने इसको अच्छे से नोट करना है, सभी क्वेश्चनों को, 6 के 6 क्वेश्चन को समझना है। बार बार इस वीडियो को देख के समझ लेना है, क्योंकि जितना बार देखिएगा उतना समझ में आएगा, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपान स्टडी सेंटर के हेल्प करना है। हम जो होगा इसके अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो हम कराएंगे वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अगले हफ्ते जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो भी आपको प्राप्त हो, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी आपका जो है फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। हम अगले जो है टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।